Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Well, it's our new podcast, and I'm really excited. And I'm super excited to share one of our best results. Not now in the IELTS examination. Alhamdulillah, we have showed nice results like 8 bands and individual 9 bands, and also, 8.5 and 7.5 and 7 bands. So there were a number of results. But this time we have invited our guests, and I would let you know that these results are all about the PTE best and the greatest results. And as you know that my podcast is an inspiration podcast. So it's our ninth episode, and I have invited my greatest friends and also my candidates, my students, and the best learners. And both of them are, the friends as well. So Mr. Abbas and Mr. Saifullah, how are you? Alhamdulillah, sir. You're fine. Yeah. Okay. Okay. So we just invited you here. How do you feel about this? First of all, thank you for Mhm. inviting us. It's a great pleasure to give a podcast at the institute where we once learned. We are very thankful to the institute for inviting us and sharing this. No. Mashallah, you're quite respectable. So give respect, take respect, and give respect. The sentence is like that. Thank you, sir. Mr. Saifullah, how are Yes. you? After a long time, Yes, sir. I'm all good. How are you? mashallah. So our podcast should not be that much tense or that, Yes, sir. formal or something. We have to make it informal. We have to use two languages, Urdu and English. Yes. तो इससे थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा. ऐसे व्यूअर्स हैं जो अभी लर्निंग कर रहे हैं, इंग्लिश की लर्निंग कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आसान हो जाएगा. और थोड़ा सा इस पर गपशप भी लगाएंगे, तो जितना भी रिलैक्स होंगे, अच्छे अच्छे पॉइंट्स डिस्कस कर लें, तो स्टूडेंट्स को थोड़ा फायदा पहुंच जाएगा इंशाल्लाह. And that would be a kind of beneficial aspect from your side as well. और मैं इसको कहता हूँ कि ये सदका जारिया भी होगा. जो पॉडकास्ट आपको सुनेंगे तो वो सवाब आपको मिलेगा, क्योंकि आपने उनको ट्रैक बता दिया कि दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग, दैट इज द थिंग. अच्छा, तो मैं इंडिविजुअली आपसे लाइन वाइज कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, लेकिन मेरा बहुत ही फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि हाउ इज योर लाइफ आफ्टर अचीविंग 88 and 82? The life is good because it was a big tension. Mhm. Without this, we could not make it. Okay. But now it's easy for us. Like everything is done. Okay. That's nice. What do you think? Sir, it was an hurdle Mhm. which we needed to clear in order to study overseas. Alhamdulillah, we achieved the required score, and we are now doing very good. It's very nice, mashallah. And वैसे आपकी फैमिली वाले खुश थे? सच सच बताएं. खुश तो बहुत है सर. वैसे उनको पता है इन चीज़ों का कुछ, मतलब खामखा मेरे पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं है, उनको इन चीज़ों का नहीं पता कि आइल्स क्या होता है, पीटी क्या होता है, ओईटी क्या होता है. तो पेरेंट्स को इन चीज़ों का पता था कि मतलब ये एक टेस्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है और इससे ओवरसीज एजुकेशन वगैरह के लिए जा सकते हैं. सर आइल्स के बारे में उनको पता था कुछ, पर दे वर फुली अनअवेयर ऑफ पीटी. They even didn't knew about the test, that whether such thing existed or not. Okay. मेरे टेस्ट देने के बाद उनको पता चले कि पीटी नामी भी कोई चीज है. और अच्छा. they were super proud of me that I achieved such scores. माशाल्लाह. किसी ने कोई इनाम कुछ दिया है? जी सर, इनाम दिया. अच्छा, आपके पेरेंट्स ने So क्या, my आपका उनका parents- रिएक्शन क्या था? My parents didn't know about the PT or anything else like that. When I told them that I have a test on Sunday in Islamabad, they were like, "What is this? Which test conducts on Sundays? Are you going on a trip or something?" I said, "No, here is the thing, and I'm going for a ओके. test." उसके पेरेंट्स सोच रहे थे कि ये कोई टूर मोर के लिए जा रहा है. So अच्छा, and when you got your best results, so what was your reaction after that? Yes, sir. They were happy. They were happy. It's nice. अच्छा, और कुछ नहीं दे सकते कम से कम पेरेंट्स को अच्छी अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं, खुशी दे सकते हैं, कम से कम ये तो कर सकते हैं. Yeah, it's very nice. अच्छा, मैं अभी थोड़ा सा फॉर्मली आपसे पूछूंगा, क्योंकि जितना भी पॉडकास्ट हमारा शॉर्ट होता है उसके व्यूज़ ज़्यादा होते हैं. हमें व्यूज़ नहीं चाहिए, हमें असल में ये चाहिए कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट हो. पहले देख लेते हैं कि जी कितने मिनट्स का, 15-20 मिनट्स का है तो चलो देख लेते हैं. वो 30 मिनट्स 40 50 60 में भी पहुंच जाता है तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा वो कहते हैं ऑन हमारा गया, अभी कौन 30 मिनट्स देगा इसको. तो हम कोशिश करेंगे कि कंसाइज तरीके से, कंसाइजनेस तो ऑलरेडी आपने सीखी हुई है, तो कंसाइज तरीके से, थोड़ा फनी तरीके से, एंजॉयबल तरीके से मुझे लिसनिंग और रीडिंग में आपसे पूछूंगा, राइटिंग और स्पीकिंग आपसे पूछूंगा. पॉडकास्ट का टाइम भी थोड़ा सा कम हो जाएगा और स्किल्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. सो लिसनिंग, हाउ वाज लिसनिंग
and how did you attempt that? And what was your score in PT read examination? Sir, in my PT real examination, I scored 88 out of 90. The test work was quite tough. If I go for listening module, it was quite Challenging. challenging. Mhm. There were answers which The score was 80? the score was 88. 88, Yes, sir. which is quite a nice score. जी. अच्छा, अगर ये 88 और नहीं लिसनिंग में क्या स्कोर था? Sir, listening में 90 था, I think. 90 in listening, 90 और 90. Yes, sir. अच्छा, ये जो 88 स्कोर है या 82 स्कोर है, अगर मैं असल में 88 और 82 को लोग नहीं जाते हैं, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं आइल्स में कन्वर्ट कर दूं तो ये 8.5 स्कोर जी. बन रहा है. तो 8.5 आइल्स में 8.5 लेना बहुत ही रेयर बन जाता है. ये बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स होते हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने अगर मैं उसको कन्वर्ट कर दूं पीटी में तो 88 लेना, 82 लेना, 85 लेना, 84 लेना, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे यहाँ पे ट्रेन किए कि उन्होंने ये ज़बरदस्त स्कोर अचीव किया. तो इट्स रियली इंस्पिरेशन. जी. मैं कहता हूँ कि इसके बाद तो आप एक अपना इंस्टीट्यूट खोलें इस पे ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर लें. अच्छा, और मेरे कंपेटिटर बन जाएं सामने ही वो कर दें. या अच्छा, ये आप लॉयर हैं, जी. अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं आप? Same. द सेम. अच्छा, ये दोनों लॉयर भी हैं? लॉयर नहीं है, लॉयर. इट्स नाइस. जी. So, what strategy did you use? Sir, I completely stick to the strategy which was taught by my seniors and mentors, Sir Yasir and Sir Saddam, जो मुझे इंस्टीट्यूट में सिखाया गया ताकि इस क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करना है, इसको ऐसे हैंडल करना है, मैं उसी पे स्टिक था. उस क्वेश्चन जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस थे उसको भी उस तरीके से हैंडल किया. कुछ वो जी जी कुछ ओके. सो स्ट्रेटजी में कोई ऐसी स्ट्रेटजी आपको याद है वैसे ही, या मतलब चलो पीटी के क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, उनमें से उसके अलावा ऐसे आप क्या एक्टिविटी आपने की थी कि जिसकी वजह से यू थिंक दैट योर माइंड वाज रेडी फॉर लिसनिंग एंड यू अटेम्प्टेड दैट नाइसली? अगर आप भी आंसर देना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि डिवाइड करने के लिए लिसनिंग रीडिंग इनसे पूछ लूंगा, दरमियान में आपके दिमाग में कोई आ रहा है तो इंशाल्लाह यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट. सर, मैंने आप लोगों से पीटी नाउ का ऐप परचेज किया था. मैंने ये तरीका इंडिपेंडेंटली ये तरीका अपनाया कि मैं पहले सेक्शनल मॉक्स देता था. I used to give sectional mocks until I achieved the required score. जब मेरे sectional mocks में listening में for example मेरे score 80 तक पहुंच जाता था, 5-6 मैं consecutive mocks देते था, वो 80, 78, 80 प्लस आते, तो तभी मैं satisfy होता कि I am fully prepared for listening. उसके बाद मैं फिर दूसरे मॉड्यूल पे शिफ्ट हो जाता, उसके लिए भी मैं यही सेम तरीका करता, आप लोग की स्ट्रेटजी अपना के आंसर करता और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्कोर भी अच्छा आता था. मैं फुल मार्क्स देता तो फुल मार्क्स में मेरे 78, 80, 85 तक पीटीए नाउ के ऐप पर आया हुआ है मेरा स्कोर. अच्छा, पर आप वैसे ये इन्होंने बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि मैं जी पहले, अच्छा एक होता है प्रैक्टिस टेस्ट, एक होता है सेक्शन मॉक एग्जाम, एक होता है फुल मॉक एग्जाम. तो सर ने कहा है कि मैं सेक्शन मॉक एग्जाम में इसकी प्रैक्टिस पहले करता था, जब मैं मतलब ये टारगेटेड प्रैक्टिस उसको कहते हैं कि मतलब एक चीज़ में आपका स्कोर कम आ रहा है या एक चीज़ को परफेक्ट बना रहे हैं. सो उन्होंने कहा है कि मैंने परफेक्ट बना दिया, फिर मैं फुल मॉक एग्जाम पे गया हूँ. सो it's so nice. It's a really I can say that it's a best strategy, and I'm happy with this. Acha, what about the reading activity? सर, रीडिंग मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है और टेक्निकल है एज कंपेयर टू लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग. अच्छा. रीडिंग एग्जाम में सर आई वाज लेफ्ट बिहाइंड. मुझसे 3 क्वेश्चंस मैंने रीडिंग में अटेम्प्ट नहीं की. अगर मैं वो कर लेता तो मेरा स्कोर रीडिंग में भी 80 प्लस आ जाता. पर उसमें गलती सब यही करते हैं कि ड्रैग एंड डाउन, ड्रॉप एंड डाउन, फिल इन द ब्लैंक्स, इनको इजी ले लेते हैं, पैसेज की नोयत को नहीं समझ पाते दैट वेदर इट कन्वेज अ पॉजिटिव मैसेज और अ नेगेटिव मैसेज. जो इनको बस आंसर इनको उस टाइम पे सही लगता है, सही भी होता है, इनके तो सही भी होता है, पर पैसेज के हिसाब से सर वो आंसर थोड़ा गलत होता है. तो इसी वजह से लोगों के मार्क्स भी कम होते हैं. मेरी से भी ये गलती हुई थी और टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है. अच्छा, ओके. सो इसका मतलब है कि ड्रैग एंड ड्रॉप वाले ऑप्शंस में थोड़ा सा Sir, sensible. I would suggest everyone that they should go through the passage at least 1 or 2 times. तो क्या सजेस्ट करेंगे, वो यहाँ पे एडमिशन ले लेगा ना? जी सर, जरूर. तब तो यही सजेस्ट करूंगा. थोड़ा बहुत समझ तो आ जाती है ना. एक बंदा डायरेक्टली घर में बैठ के जी कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करके चला जाता है, सो दैट इज समथिंग एल्स. तो कुछ ना कुछ खामखा होना चाहिए.
like at least the basic information should be there. And a person should know that what are the basic structure of the questions and how we have to attempt them, and they जी have to do some practices. 45 days की यहाँ पे क्लास होती है, 45 days में इतनी प्रैक्टिस स्टूडेंट्स को जी करवा देते हैं कि एटलीस्ट एक स्टूडेंट कहेंगे तो कम से कम बहुत ही खराब हो जाए, बहुत ही खराब हो जाए, एटलीस्ट 70 स्कोर तो ले लेगा, अपना जी रिक्वायरमेंट तो बराबर कर जी लेगा. सो फॉर दैट रीजन दैट इज द थिंग. अच्छा, रीडिंग में ऐसे कोई और मशवरा, मतलब पीटीई प्रैक्टिस के अलावा ऐसी कोई और प्रैक्टिस जिससे थोड़ा बहुत उनको इन्फॉर्मेशन. Sir, I would suggest everyone that they should read newspaper daily. रीडिंग में वोकेबलरी का इस्तेमाल और वोकेबलरी का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी रीडिंग एंड राइटिंग में. ये तो मैं फोर्स करता हूँ स्टूडेंट्स जी को, जब भी आइल्स में रीडिंग, ओईटी में रीडिंग, पीटी में रीडिंग मैं जी जब स्टार्ट करता हूँ, तब मेरा फर्स्ट सजेशन नहीं, फोर्सफुली मैं उनको कहता हूँ, जी कंपेल करता हूँ कि कल जिनके पास न्यूज़पेपर ना हो तो मैं उनको क्लास में नहीं छोड़ूंगा. हमने भी ऐसे ही किया था सर, बिल्कुल. आपके फोर्स करने पर हमने मोबाइल ऐप्स भी डाउनलोड की थी. बिल्कुल डेली आप पूछते भी थे, हम बिल्कुल आपको रिस्पॉन्सेज भी दे देते, आप वर्ड्स भी बताते थे कि बिल्कुल. इस वर्ड्स की मीनिंग बताए. तो आपसे आपकी मशवरे के बाद जी, हमने थैंक यू वेरी ये मच. जी ये हमारे लिए रिस्पेक्ट से भी ऊपर का कोई मेरे पास वर्ड नहीं है कि जितना आप लोगों ने फिर उसके बाद हमारे चीज़ों को, हमारे पॉइंट्स को, हमारी स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करके देन यू came up with this greatest result. अच्छा, we will move uh, towards Saifullah. Yes, sir. Mr. Saifullah. वैसे दोनों का नाम बहुत ही माशाल्लाह, अब्दुल्ला हद अब्बास एंड सैफुल्लाह, तो दोनों अल्लाह के नाम है. Saifullah means Yes, sir. Sword of God. the sword of Allah. Yeah. Okay, and Abdullah Had. Sir, Ahad goes for one alone, and Abbas is also the name of our beloved Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam uncle, Mhm. and it means lion. Nice. Okay, like जी Okay, it's really nice. अच्छा, इससे पहले मेरे जो previous podcast था अभी, वो आज मेरे ख्याल से अपलोड हो जाएगा या कल अपलोड हो जी जाएगा. उस बंदे का नाम है मोइस, अब्दुल मोइस. Mm. तो मोइस इज्जत देने वाला या जी इज्जत, तो सारे माशाल्लाह हमारे सारे पॉडकास्ट जी में अल्लाह के नाम आ रहे हैं, जी तो it's great. अच्छा, Mr. Saifullah, would you please let me know something about the writing first, like how you learned it here and how then executed the same plan in the real or actual examination, and what thing, would you remember that was really a good strategy, this worked for me or that worked for me, sir? So actually, writing consists of two things: summarize the written text and the essay. Mhm. For the essay, you should have a good vocabulary Mhm. and keywords you should add, and the way you taught us how to write it in The basic structure of that. the Mhm. introduction paragraph, Mhm. body 1, body 2, and then the conclusion, and it should be more than like 250 words in Mhm. between, like not more than 300 words, not less than 200 words. Mhm. And if you have good vocabulary and good keywords, Mhm. and if you understand the topic properly, first of all, you should understand the topic. Can you share the score in writing? I got 75. 75. And what about you? Sir, You don't it remember was that? 85 or 83. 85, 83. Should I check that? Yes, sir. Okay, if you can check now. Yes, sir. अच्छा, 85 and 83 इस तरह का कोई स्कोर है. अच्छा, आपका तो 75 है, Yes. and सर का स्कोर मुझे नज़र नहीं आ रहा. So sir would just literally show that. Sir, 87 in writing, 87 in writing. 84 Wow. in speaking, and 90 in listening. MashaAllah, listening में 90. जी It's great. और आपका listening में sir? So I got 90. अच्छा, speaking 90 था. speaking में 90 आपका. Yes, sir. Wow, यार. 90 out of 90. Yeah. This is called, the best practice ever, which can literally show that कि हाँ किया तो आ गया. जी मजा आता है. अच्छा, in summarizing the text. Summarize the index. In that we have tips. Mhm. I'm not going to tell them that because for that they will have to come here. join this institute. Yeah. ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट ने बताया कि अच्छा, मैंने ऑनेस्टली, मैं कसम खाता हूँ, मैंने इनको नहीं बताया. लेकिन ये कह रहे थे कि नहीं, मैं अपने वो टिप्स नहीं बताऊंगा कि वो यहाँ पे आए, एडमिशन ले और फिर यहाँ पे वो कर लें. थैंक यू वेरी मच, हमारे बिजनेस का इतना सोच रहे हैं. इट्स ग्रेट. अच्छा, तो 75 स्कोर आया, इसका मतलब है कि अटेम्प्ट बहुत ही पावरफुल अटेम्प्ट था, Yes. बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट था. आपका 80 87. 87, ये उससे भी पावरफुल अटेम्प्ट था.
अच्छा अच्छा, आपने कुछ कहा है कि आप इस कोर्स से सेटिस्फाइड नहीं है, 82 से आप और भी इसको इम्प्रूव करना Yes, चाह रहे sir. हैं। I wanna वाह, I wanna get 90, या तो sir. पैसे बहुत ज्यादा हो गए हैं आपके पास और या वैसे ही आप परफेक्शनिस्ट है। Mm, परफेक्शनिस्ट है कि पैसे ज्यादा हो गए? don't know. दोनों माशाल्लाह, इट्स वेरी गुड। अच्छा जी, आप लोगों की डिग्री कहाँ से चल रही है? Sir, we have done LLB from University of London, Mhm. and we are hoping to go for the bartending course to UK. Okay, what course is that? Bartending course to become a barista. Bar Bar training course. bar training course. Yes. Okay, wow. And what about the same? Yes, Yes, sir. sir. I Okay. have the same. It's great. So do they need PT? So actually, they have their own test, English test, Mhm. and they also accept PTE tests. So we वैसे ऑलरेडी डिग्री आपकी इंटरनेशनल है, कौन सी यूनिवर्सिटी है? University of University London. of London. यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, दोनों से। जी तो कम से कम उनको एग्जाम करना चाहिए था आइल्स और पीटी, क्या नहीं? Actually, सर sir, they do इंटरनेशनल test. स्टूडेंट्स को वो इतना वो नहीं देते, हमारे लिए उन्होंने बहुत आसानी दी है. If Mhm. I'm hoping to do the same degree, bar and LLM training course from a Pakistani law degree, Mhm. I would be doing a full-time LLM on top of my current degree. Mhm. Besides this, I cannot go easily for bar and LLM using my Pakistani degree. Mhm. यूके की डिग्री है तो ये रिक्वायरमेंट्स उनको सिर्फ इसके लिए कि एक क्राइटेरिया है, क्रेडिबिलिटी उनके लिए कि वेदर ही कैन सर्वाइव इन आवर यूनिवर्सिटीज और नॉट. तो जबरदस्त। मेरे और आपके हिसाब से एग्जाम्स भी वही कंडक्ट करते थे? जी Yes, sir. In the British ऑनलाइन होते Council. थे? British Council. ब्रिटिश ब्रिटिश काउंसिल, काउंसिल के अच्छा थ्रू वो ये ऑनलाइन. ब्रिटिश काउंसिल का है जी सेटअप। ठीक शो इट्स Yes. फाइन। माशाल्लाह, तो ऑलरेडी ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू भी गए हैं। Yes, जी sir. ओके ओके, और टेस्ट सेंटर आपका अपनी Scans. स्कैन्स में स्कैन्स होता है? ठीक शो Like we just have to show them the degree that yeah, we have the degree from University of London and the test, and they give us the case letter, pay the fee, get the case letter, and apply for the visa. वाओ। we only So need to clear the IELTS or PT in order to get enrolled into that course. इट्स नाइस माशाल्लाह। Yes, sir. खैर और खैर ये एजुकेशन है भी बहुत एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव बहुत है, ये एक बहुत एक्सपेंसिव बड़ा होता है, ड्रॉबैक है. मतलब लोकल जी डिग्रीज उसमें 5-6 डिग्रीज आप कर सकते हैं जी जितना मुझे पता है। वो खैर हम नहीं बताएंगे कि कितना है, लेकिन खैर चलो क्यूरियोसिटी के लिए अच्छा है कि व्यूअर्स देख लें इसको। जी. ओके, व्हाट अबाउट द स्पीकिंग पार्ट? Sir, What was your score in speaking? 90. 90 out of 90, wow, it's a great test. मैं एक्सप्रेशन मैं सीरियसली इसको फील कर सकता हूँ कि 90 out of 90 बिल्कुल ही परफेक्शनिस्ट का स्कोर होता है। अच्छा जी, so Sir, what strategies? I will never say speaking is easy because it's not our native language. Mhm. So because we are always afraid to speak, Mhm. like writing, listening, reading, we can do that easily. But for speaking, as we are Pashtuns, Mhm. so it's not. We get worried about okay, what is going to come. Mhm. So for speaking, first of all, as you taught us Mhm. in the Kinesthetic Learning Institute, Thank you. that first of all, let you watch the videos on YouTube, the TED Talks. Mhm. Oh, Uh, yeah. Yeah, if they see, if they think like they are boring, they can watch movies on Netflix. Mhm. They can read newspapers, and these are enough tips. For other tips, they will have Other to. tips will be taught here. Yeah. No, thank you. Wow, nice. It's Yes, great. sir. And in the actual examination, when we when you went there and the actual test started, अच्छा मैं कुछ issues भी बताऊंगा। The test center के issues मैं खैर उनको खुद ही email करूंगा, उनको call करूंगा जहाँ पे ये टेस्ट कंडक्ट होता है। मैं नाम नहीं लूंगा, खैर किसी की वो बेइज्जती ना हो जाए इसमें, लेकिन उनको बताऊंगा टेस्ट सेंटर में क्या इश्यूज आते हैं। आप दोनों मुझे बता दें, खैर स्पीकिंग में, बाकी टेस्ट एक्टिविटीज में। सर, इशू सबसे बड़ा इशू मेरे हिसाब से ये था कि बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड था. हम्म, छोटे से रूम में एट मिनिमम 15 से 17 स्टूडेंट्स बिठाए हुए होते और सब अप्रोक्सीमेटली 20 स्टूडेंट्स जी मुझे अप्रोक्सीमेटली पहले भी बताया गया। 20 स्टूडेंट्स बिठाए हुए होते. तो हमें ये मसला होता है कि एक स्पीकिंग पार्ट में जब बंदा बोलता है तो इससे दूसरे को डिस्टरबेंस होती है. हम्म, हमें भी हुई थी. रीड अलाउड में मुश्किल होता है, रिपीट सेंटेंसेस सही से नहीं सुने जाते, बाकी भी बंदा डिस्टर्ब होता है. एक बंदे ने माइंड में अपना टेम्पो बनाया होता है एक आंसर के मैं ये डिस्प्ले करूंगा, हम्म। दूसरे का सुन के उसका आंसर भी गलत हो जाता है और इससे स्ट्रेटेजी क्या? अच्छा, ये इश्यूज जो सर ने बताए कि रिपीट सेंटेंसेस में सारे 20-25 स्टूडेंट छोटे रूम में बैठे हुए हैं, जी सब जी ऐसे मछली मंडी वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, तो जी जो जिनके दिमाग में कुछ टेम्पो वगैरह बना होता है तो वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। जी सो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए सर? सर उस टाइम क्या क्या किया आप लोगों सर फुली फोकस्ड होना चाहिए, इधर ने? उधर ध्यान नहीं देना चाहिए. बस ऐसा आपको फील करना चाहिए कि आप सुन ही कि वो नहीं चीखें सकते मारे तो उनको. आप भी जी चीखें मारना स्टार्ट कर लें। जी हाँ उनकी हाँ, यही एनर्जी करना को होता मैच करना चाहिए सर, वरना बंदा पीछे रह जाता है. है।
आपके टेस्ट में इतनी आपकी आवाज नहीं आती होगी जितना उनका वो सुनाई मैं देता मैं होगा। ये वो कह रहा हूँ, एक स्टूडेंट ने कहा है कि सर मैं एक टाइम पे चुप हो गया तो शोर इतना ज्यादा था कि वो मेरे माइक ने डिटेक्ट कर लिया जी और वो उसको डिटेक्ट कर रहे थे और उसकी आवाज़ वहाँ पे जा रही थी। तो खैर टेस्टिंग सेंटर वालों को, जो भी इस्लामाबाद में टेस्टिंग सेंटर है पीटी का, सबको पता होगा। उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं उनको दिखा दें कि ये इशू है तो प्लीज़ थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट कर दें। मैं खुद भी इनको कांटेक्ट करूँगा, उनको ईमेल भी करूँगा कि फॉर्मली इनको ज़रा मैनेज कर दें। अदरवाइज कुछ और सेंटर्स पेशावर में भी बन जाएंगे, फिर आपका मार्केट वैसे ही ख़राब हो जाएगा। कुछ सेंटर्स मर्दान में बन जाएंगे, कुछ केपीके के कुछ और इलाकों में बन जाएंगे, तो वो ख़राब हो जाएगा। क्यों ना, यू जस्ट हैव टू have the same improvement students want. So that would be a beneficial aspect for the setup, means the institute providing these facilities. अच्छा जी, ऐसा कोई challenging टिप आप बताना चाहते हैं कि जी that can really change the students score? वैसे ही दिमाग में कुछ हो, आप दरमियान में खैर चाय भी ले सकते हैं, जी खैर दिमाग से काम करना स्टार्ट कर देगा। सर, अगर इंस्टीट्यूट रिलेटेड हो तो मैं सबको यही मशवरा करूंगा कि दे शुड चेक देयर हेडसेट्स वेदर दे कैन क्लियरली हेयर। और टेस्ट से पहले एक क्वेश्चन भी वो होता है कि उसमें माइक चेक किया जाता है दैट whether your sound is audible or not, the other person will able to understand or not। तो मैं सबको यही मशवरा कहूंगा कि पहले अपना वो चेक करे, हेडसेट चेक करे ठीक सही है। से काम करते हैं या नहीं। मुझे भी ये इशू फेस हुआ था कि मैं जब हेडसेट मैंने पहना तो एक उसमें वो लिसनिंग की साउंड बहुत ज्यादा कम थी, मैं सही से नहीं सुन पा रहा था। अच्छा। स्पीकिंग में मसला था। मैंने सेंटर वालों को अप्रोच किया, उन्होंने चेंज करके दिया। हालांकि अच्छा नहीं था पर पहले वाले से अच्छा था। तो मैं सबको यही मशवरा दूंगा कि हेडसेट्स के बारे में कोई मजाक ना ले। अगर हाँ, कोई ये मसला जरूरी हो है, तो अगर कोई इशू आ रहा है तो टाइम पे रिपोर्ट करते हैं, उनको ये ना कह हो कि दे, मतलब। टेस्ट से पहले उनको कह दे कि ये चेंज करके दे, वो चेंज करके दे देते हैं। अच्छा अच्छा जी अच्छा, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो बस कहते हैं कि बस इसमें एडजस्ट करना है हमने और बस जी इसी में टेस्ट देना है। तो हो सकता है उसके बाद और भी ख़राब हो जाए। तो सर ने जी कहा है कि टेस्टिंग में मतलब वो चेंज कर देते हैं फिर आपके लिए। जी सो इट्स नाइस। जी एनी एनी अदर थिंग यू हैव इन योर माइंड कि स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग में ऐसा कुछ ये वाली एक्टिविटी फॉलो कर लें तो दैट वुड बी Sir, in the reading, I would suggest them that they should just focus on the three type of questions: drag and down, drop and down, and reorder the paragraph. The other two types of questions, like the multiple choice single answer MCQs. and multiple choice multiple answer, they should just skip them. Like they should just give them a read. If it's okay, they can do it. Just they do it, and they just because they are very time taking, sir. अच्छा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिंगल आंसर और मल्टीपल आंसर में सर कह रहे हैं कि इनकी स्ट्रेटजी है। मैं तो खैर सजेस्ट करता हूँ, मैं तो एंड तक कहता हूँ कि जी व्हाई नॉट टू डू दैट, व्हाई नॉट टू गो विद दैट। लिसनिंग में, रीडिंग में ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अक्सर इसको स्किप कर देते हैं कि टाइम टेकिंग। कर लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें। लेकिन सर कहता है कि अगर एक्चुअल एग्जामिनेशन में आप बैठे हुए हैं और आपको लगता है कि दिस इज टाइम टेकिंग, आपका माइंड किसी और, पूरी एनर्जी आपकी इसी टाइप ऑफ क्वेश्चन में चली जाएगी, सो यू कैन स्किप देम एज वेल। ये इनके एक मुताबिक रीड दैट दे वाज दे द सर, स्ट्रेटजी। एक जी जी। मिनट हाफ मिनट दे दे। हाँ मगर एक क्वेश्चन हाँ, 1 मिनट में अगर अगर सॉल्व समझ कर सकते आता हैं है सर। तो कर ले, क्योंकि ये तीन टाइप क्वेश्चन जो मैंने बताया ये 50 मार्क्स कवर करते हैं 50 रीडिंग के, मार्क्स का हुआ है। सर और बाकी के जो मार्क्स है वो राइटिंग से आते हैं the ऐसे। बिल्कुल single जबरदस्त। MCQs answer and the double MCQs answer does not contribute much to the test। मैं ये नहीं कहूंगा कि skip करे। I would suggest them that they should go for it। वैसे भी मार्क्स कट रहे तो इंसान का तुक्का ही लग जाता है वो। बिल्कुल। पर टाइम वेस्ट ना करे, मैंने खुद भी वेस्ट किया था, मैं अभी तक रिग्रेट कर रहा हूँ कि अगर मैं उन पर अच्छा। टाइम ज्यादा वेस्ट ना करता तो मेरा अभी 71 की जगह रीडिंग में 83 84 आ जाता। क्योंकि ठीक ठीक। टाइम ज्यादा लग गया था मेरा इस पे, इस वजह से मेरे से एटलीस्ट 15 16 मार्क्स के क्वेश्चन हम मेरे से रह असल गए थे। में, मैं तो ट्रेनर हूँ, हम जी अटेम्प्ट कर चुके हैं पीटी बहुत ही सालों पहले। तो आजकल की जो स्ट्रेटजीज हैं जो आप स्टूडेंट्स फील कर रहे हैं, ये जी स्ट्रेटजी बहुत ही एक्सेप्टेबल स्ट्रेटजी होती है। जी तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो स्किप कर दे तो कोई इशू नहीं बनता, क्योंकि दे डोंट कंट्रीब्यूट मच। मेरे ख्याल से कितना स्कोर होता है, सर, एक या दो, 1 या 2? 1 या 2। तो 1 या 2 स्कोर से हम पूरा टेस्ट खराब कर रहे हैं। व्हाई नॉट टू फोकस मोर ऑन द अदर थिंग्स। और रीडिंग का कंट्रीब्यूशन पे राइटिंग से भी आता है, राइटिंग का जी स्कोर आपका अच्छा हो तो रीडिंग आपका वहाँ पे ठीक हो जाता है। मेरा सो
पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर मैं इस पर इतना ज्यादा फोकस ना करता, मैंने किए सर, मुझसे सबसे ज्यादा टाइम यही है, सिंगल एमसीक्यूज और डबल एमसीक्यूज नहीं लिए, बार बार रीड करना, उसके मुताबिक आंसर को फिर पिक करना। अगर मैं ज्यादा फोकस ना करता तो मेरे से जो रीऑर्डर एक रह गया, एक दो ये ड्रैग एंड ड्रॉप एंड फिल इन द ब्लैंक्स रह गए, अगर मैं वो कर लेता तो मेरा स्कोर इससे भी अच्छा आ जाता। अच्छा, हमारे सॉफ्टवेयर में जी और एक्चुअल एग्जामिनेशन में क्या डिफरेंस आपको नजर आया? सर, ये मुश्किल है कि वो मुश्किल है? सर डिफरेंस सच नहीं है, पर इसमें मार्किंग का क्राइटेरिया थोड़ा थोड़ा सख्त है मेरे किसमें? हमारे सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर में। मेरे हिसाब से अच्छा भी है, में? क्योंकि बंदा थोड़ा प्रेशर ले लेता है कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मेरी रिक्वायर्ड स्कोर है, मैं इसको अचीव करना है, तो जब तक मैं अपना टारगेट अचीव ना करूँ तो इससे वो बंदा मेहनत थोड़ा ज्यादा करता है। अगर जबरदस्त। ऐसी स्कोर देते तो बंदा फिर टेंशन फ्री हो जाता है कि स्कोर वैसे भी मिल रहा है। मेरा भी यही था सर, एट स्टार्ट मैंने जब स्टार्ट में प्रैक्टिस शुरू की तो आई वाज इन द लोअर 60s या मेरे ख्याल अपर से हाँ। 50s, 58 62, हम्म, पर मुझे स्कोर चाहिए था, मेरा 76 एंड ऑल रिक्वायर्ड था। हम्म, तो जब तक मैंने हर मॉड्यूल को 80 तक टच नहीं करवाया तो मैं दिन में 5 5 घंटे 4 4 घंटे ये मैं पीटीए को देता था। माशाल्लाह। हर दिन मैं एक कंप्लीट मॉक भी देता था। 4-5 घंटे जी मस्ट है 88 और 82 और जी 85 स्कोर के लिए। सर, मैंने बताते खुद ये स्ट्रेटेजी अपनाई है कि फर्स्ट वीक पे मैंने लिसनिंग को फुली परफेक्ट किया है, सेकंड वीक जबरदस्त। पे फिर रीडिंग को, मेरे पास टाइम बहुत था, हम्म, थर्ड वीक पे फिर मैंने राइटिंग को, और लास्ट वीक पे मैंने स्पीकिंग को। जब माशाल्लाह। मैं फुली सेटिस्फाई हुआ तो मैंने ज्यादा से ज्यादा या 2 या 3 कंप्लीट मार्क्स दिए होंगे। हम्म, उसके बाद बस मैंने टेस्ट के लिए बुकिंग की, मैं बस सेटिस्फाई हो गया था अपने प्रोग्रेस से। माशाल्लाह। तो उसके बाद मैंने टेस्ट बुक किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम्म, रिक्वायर्ड स्कोर भी मिल गया। आई एम फुली सेटिस्फाइड विद माय रिजल्ट। थैंक यू, थैंक यू। सर इट्स ग्रेट माशाल्लाह। हमारे कैंडिडेट्स खुश खुश होते हैं तो हम भी जी खुश होते हैं। जी वो सेटिस्फाइड और सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट शो करते हैं तो कमिंग स्टूडेंट जो ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है, जी पीटी में इतने स्टूडेंट्स, पेशावर में इतने स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। जी ज़्यादा से ज़्यादा महीने में 3-4 स्टूडेंट्स आ जाते हैं, कभी कभार 5-6 स्टूडेंट्स आ जाते हैं। जी तो उनको एक इंस्पिरेशनल, मैंने आपके रिजल्ट्स उनके साथ वैसे ही डायरेक्टली शेयर किए हैं तो उन्होंने कहा कि वाह माशाल्लाह। जी तो इनडायरेक्टली उनके दिमाग में भी और दिल में एक मोटिवेशन स्टार्ट हो गई। ऐसा कोई और दिमाग में कोई ऐसे और सर, टिप आ मैं रहे लोगों को ये भी सजेस्ट करूंगा कि दे शुड गो फॉर इंस्टीट्यूट्स, नो मैटर हाउ गुड अ पर्सन इज एट स्पीकिंग इंग्लिश। हैं? जब तक वो ये टैक्टिक्स नहीं सीखेगा, जब तक वो ये स्ट्रेटजीज नहीं अपनाएगा, तो मेरे हिसाब से ही वोंट स्कोर वेल। अगर ही इज लाइक वे टू गुड इन इंग्लिश, फ्लुएंसी भी है, वोकैबुलरी भी है, पर अगर वो इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस ना करे, वो स्ट्रेटजीज ना अपनाए, तो सही है, 65 70 तक स्कोर आ जाएगा, पर इससे अच्छा मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं कर आप सकते। एक्सपेक्ट नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता। हम्म। इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हाँ हैं हाँ सर। रिजल्ट बिल्डिंग में। एक होता है मतलब एक बंदे, एक, मैं अपने आप को या कंसिडर करता हूँ कि एक ट्रेनर है, जी एक एक्सपर्ट है, उन क्वेश्चंस को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहा है तो एक जी एक्सपीरियंस ज़्यादा होंगे। हमने एक्सपीरियंस सपोज 10 साल में एक चीज़ का एक्सपीरियंस किया, वो 10 साल का एक्सपीरियंस आपको एक महीने के अंदर अंदर बता देते कि ये चीज़ें जी फॉलो कर ले। फिर वो स्टूडेंट अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेता है तो दो माइंड्स हो जाते हैं। जी ठीक है, और फिर ऐसे स्टूडेंट्स क्लास में 5-6 स्टूडेंट्स, हमारे टाइम पे तो मेरे ख्याल से कोई 8 9 10 जी स्टूडेंट्स एट थे। नाइन तो 8 9 10 स्टूडेंट्स कुछ वीक होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो इन सब से इनडायरेक्टली लोग मैसेजेस इकट्ठे कर करके जी वो उस पे काम, घर में बैठ के अपने स्टडी रूम में बैठ के, या हमारे पेशावर में तो स्टडी रूम्स ही नहीं होते हैं, तो जी ऐसे माहौल में बैठ के जी वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो हाउ दे लर्न? सो आई जी थिंक इट्स अ सर, ग्रेट पॉइंट। इंस्टीट्यूट एक ऐसा भी रोल अच्छा प्ले करते हैं। सर, मैं अपनी बात करूँ तो आई एम एन एवरेज स्टूडेंट। मैंने जो कुछ भी सीखा है इधर से ही सीखा है। स्पीकिंग में कुछ क्या टिप्स क्या ट्रिक्स करनी होती है, टेम्पलेट्स कुछ कहाँ यूज करनी होती है, कहाँ यूज करनी नहीं होती, जी जी जी। बाकी क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना होता है, किस टाइप का रिस्पांस देना होता है, किससे मार्क्स मिलेंगे, किससे मार्क्स रिटर्ट हो गए। तो मैं 99% मैंने जो इधर से सीखे वही मैंने वहां पे रिजल्ट पे टेस्ट पे डिस्प्ले किया, और स्कोर मेरा काफी अच्छा आया है। दैट्स अगर नाइस मैं माशाल्लाह इन जी। चीजों पर फोकस ना करता, मैं हालांकि मेरे वोकेबलरी भी अच्छी होगी, मैं अच्छा भी बोलता हूँगा, पर अगर मैं ये जो मुझे इधर सिखाया नहीं गया, मैं ये यूज ना करता उधर, हम्म। तो अभी 88 है, फिर
68 70 72 तक स्कोर आ जाता। इससे अच्छा नहीं ये आ सकता मेरे ये हिसाब से। बहुत ज़्यादा मेरी तारीफ कर रहे हैं, हमारे जी इंस्टीट्यूट की तारीफ कर रहे हैं, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। हमारे जितने भी पॉडकास्ट होते हैं, मैं शुरू में कहता हूँ कि ना हमारा डायरेक्टली पॉडकास्ट स्टार्ट हो जाता है, इनको यहाँ पे बैठाता हूँ, मैं जी यहाँ पे बैठ जाता हूँ और उनको कहता हूँ कि जो नेचुरली आपके दिमाग में आ रहा है बोलते जी जाएं। हाँ, थोड़ी बहुत हमारी तारीफ होती है तो करते जाएं, हमें भी अच्छा नहीं लगता है सर, कि चलो कोई तो रिस्पेक्ट दे रहा है, माशाल्लाह। उनको खुद भी पता चल रहा होगा, वो प्री बिल्कुल प्रिपेयर्ड बंदे का फिर पता चल जाता है। हम अटक भी रहोगे, हम वर्ड्स भी इधर उधर वाले यूज कर रहे होगे, इससे पता चलता है कि बंदा डायरेक्ट बैठा है। अगर मैं प्री प्रिपेयर्ड होता तो फ्लुएंट इंग्लिश में बोल रहा होता, हम्म, अटक नहीं हो रहा होता, एक दो चीजें इधर उधर खामखा है बस ना, जैसी माशाल्लाह आई जी। है डायरेक्ट बैठे तो। It's really nice and it's जी really it's an honor. It's जी truly an honor. And एक टीचर के लिए, मेरे जैसे टीचर, बाकी टीचर्स पता नहीं उनके क्या परसेप्शंस होते हैं स्टूडेंट्स के बारे में, लेकिन मेरा जैसा टीचर जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियली अच्छा है, सेटअप्स हैं, बिजनेसेस हैं, सब चीज़ें हैं, मैं फिर भी टीच कर रहा हूँ, इस तरह के टीचर को चाहिए होता है कि जी बस मुझे बेस्ट रिजल्ट्स बचाए। ये जी हमारे लिए बहुत ही बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है, जी बहुत ही बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है। तो इट्स नाइस। जी और सैफुल, आप कुछ एंडिंग रिमार्क्स देना चाहते हैं, कोई जैसे पॉइंट्स वगैरह आपके दिमाग में हो Sir, कह रहे ये चीज़ें ending स्टूडेंट्स फॉलो। remarks after this Bola sir, if you're very good in English, IELTS and PT is not really about only English. Like 30% in English and 70% are the 70% your tactics. tactics and your Yeah. strategies. Like if a person is very good and he thinks, okay, I will just do it, I don't need to go to any institute or pay for the fees or anything. So Mhm, he will not be able to. He can get 40s or 50s, mhm, but he cannot get an 82 like me mhm. or an 88 Oh, like wow. नाइस, माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा है, जी एक चीज अचीव कर ली, कोई मतलब खामखा 82 और 83 84 के लिए जी लोग मेरे ख्याल से आजकल 5 5 6 6 10 10 12 12 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी तो अगर अचीव हो गया तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना सर चाहिए। इसने इतनी प्रैक्टिस भी नहीं की। मैं अपना बयान करूं, मैंने की है, मैं ये हम्म। नहीं कहूंगा कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की। तो वो प्रैक्टिस आपने की 88 पे पहुंच गए, जी इन्होंने प्रैक्टिस नहीं जी 82। अगर ये वही प्रैक्टिस करे प्रैक्टिस तो ये दोबारा नेक्स्ट टेस्ट के लिए कर ले कि एक्सेल 88 कर 9। जाएगा, मेरे से 88 से ऊपर आ जाएगा खामखा, इसके। जी नहीं नहीं, इंशाल्लाह 90 आउट ऑफ 90 पे आ सकता है। इंशाल्लाह। पीटीए में ज़बरदस्त बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 90 आउट ऑफ 90 अचीव किया, हमारे नहीं। जी हमारे हाईएस्ट स्कोरर्स ही आप हैं। जी 80 प्लस वाले स्टूडेंट्स हमारे हैं बहुत सारे, लेकिन आपको कह सकता हूँ कि मतलब जी आप हमारे टॉप स्कोरर्स हैं। 80 प्लस वाला स्टूडेंट टॉप स्कोरर ही होता है अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो अच्छा, हम स्टूडेंट्स को ऐसा कुछ दे तो नहीं सकते, लेकिन छोटे छोटे गिफ्ट्स हैं हमारे पास। गिफ्ट्स नहीं है, मैं चाहता हूँ कि जी एजुकेशनल गिफ्ट्स हो तो अच्छा हो, जी क्योंकि एजुकेशनल गिफ्ट्स में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को हम कहते हैं, एक तो हर एक पॉडकास्ट के एंड में मैं कहता हूँ कि माशाल्लाह आप लोग नमाजी लोग तो वैसे भी हैं, नमाज तो पढ़ते हैं जी उनके खामखा, लेकिन ये प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाता है, फॉरेन कंट्री वाला जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जी इसमें कभी डॉक्यूमेंटेशन साइन करना, कभी ये करना, कभी वो करना, और ये सारा चीज़, तो इसमें वो नमाज आगे पीछे हो जाती है। जी मैं इसका एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जी जैसा भी सिचुएशन हो, नमाज आप बरकरार रखें। सर और ये लॉ वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जी लॉ वाले स्टूडेंट्स थोड़े से अपने जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इनकी भी नमाजें थोड़ी आगे पीछे हो जाती हैं, जी क्योंकि उनको टाइम मैनेज करना होता है, वाह अपने क्लाइंट्स को देखना होता है, बहुत जी सारे इश्यूज होते हैं। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जी उनको भी कन्विंस किया करें कि जी आए यार, कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, ज़्यादा से 9 मिनट, जी ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। ठीक है, 4 रकात पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बहुत ही फोकस के साथ पढ़ रहे हैं तो 5 मिनट का टाइम लगता है। जी ठीक है, तो सुबह की नमाज पे, खैर सुबह की नमाज अगर घर में पढ़ रहे हैं जो कोई मिसाल, तो 4 5 मिनट है। मौलाना के साथ पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट होते हैं। तो जी 10 मिनट और 5 मिनट क्या टाइम है, और इससे अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी बदल देता है। जी फिर जब फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं, आप यूके जा रहे हैं, माशाल्लाह अल्लाह ताला आपका प्रोसेस आसान बनाए, अल्लाह जी ताला आपकी ज़िंदगी वहाँ पे ज़बरदस्त बनाए। वहाँ पे जाते ही इतनी एक्टिविटीज़ और इतना सब कुछ, माहौल ही बिल्कुल डिफरेंट होता है, मस्जिद नहीं होता, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे कुछ जगहों पे अलाउड होता है, कुछ जगहों पे अलाउड नहीं होता। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके पास कुछ छोटा सा जानमाज होता है, वो जी जानमाज उनके पास जेब में ही होता है या बैग में ही रखा होता है, जहाँ पे उनको टाइम मिलता है कि अभी टाइम है, बचा देते हैं और जल्दी अपना फ़र्ज़ वगैरह पढ़ लेते हैं। फिर जी उसके बाद, तो ये मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये प्रॉमिस जी कि नमाज नहीं छोड़ेंगे कभी, नहीं माशाल्लाह। तो छोटे से जी गिफ्ट्स हैं, माइंड मत करें, इतना नहीं कुछ है सर नहीं इसमें हमारी क्या तरफ से। जरूरत थी।
लेकिन एक प्यार और दिल की गहराइयों से हम आपको एक छोटे छोटे गिफ्ट दे रहे हैं। तो इतने बड़े गिफ्ट्स तो नहीं होते, लेकिन छोटे छोटे गिफ्ट्स मैं अक्सर एक नॉवल या ऐसा कोई इंस्पिरेशनल बुक होता है, ये मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ जो हमारे गेस्ट होते हैं। दूसरा एक हमारी डायरी वगैरह ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से हमें मिली है कि ये जितने भी पॉडकास्ट में आपके गेस्ट आ रहे हैं तो उनके, और ये जो उनकी ऑफिशियल डायरी है तो ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से, ये मैं स्टूडेंट्स को शेयर करता हूँ। इतने कुछ वो नहीं होते, लेकिन ये एजुकेशन गिफ्ट्स ऐसे होते हैं कि ये आपके पास पड़े होते हैं, एक मेमोरी होती है। जी तो आई वुड जस्ट से दैट माइंड मत करें, हम वो दूसरे बुके मुके वाले नहीं है कि जी बुके दे दें। बुके क्या होता है, कल फूल खराब हो जाएंगे, जी या दूसरा क्या होता है जी चॉकलेट वॉकलेट वो खा लेंगे, डब्बा फेंक देंगे। जी कम से कम ये आपके पास कहीं पे तो पड़ी जी होगी मेमोरी। और ये मेमोरी होगी। सो फर्स्ट मिस्टर अब्बास, इसके मार्क्स जिस ज्यादा है। नहीं नहीं इसके मार्क्स ज्यादा नहीं, मैं दिस इज थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। एंड मिस्टर सैफुल्लाह, आपके मार्क्स भी ज्यादा हैं। Thank you. थैंक यू This जी, was थैंक this यू।